اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں بار درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہمارے سردار، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کروڑوں بار درود و سلام آپ کی اہل بیت اطہار پر اور آپ کے اصحابہ اکرام پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم رانا حیدر ادریس۔ اگر آپ ہمارے چینل الحسن دعا خانہ یوٹیوب پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی دبائیے، اور اگر آپ کو میرے شوز پسند آ رہے ہیں تو انہیں لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ آج میں جس بیماری پر آپ سب سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ انتہائی خبیث قسم کی بیماری ہے جو انسان کو اتنا تباہ و برباد کر دیتی ہے کہ لوگ شرمندگی کی وجہ سے کسی دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں۔ میری مراد بواسیر کی بیماری ہے۔ بواسیر آنتریوں کی بیماری ہے۔ جب آنتریوں کے اندر انفیکشن یا سوزش پیدا ہو جاتی ہے تب بواسیر کا مسئلہ لاحق ہوتا ہے۔ بیسیکلی بواسیر گرمیوں کی بجائے سردیوں میں لوگوں کو زیادہ لاحق ہوتی ہے کیونکہ ہم پانی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر خشکی کا غلبہ آ جاتا ہے، اور ہماری آنتریوں کے اندر جب خشکی آتی ہے تو ساتھ انفیکشن اور سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بواسیر کا مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے۔ آج ہم بیسیکلی بات کریں گے بواسیر پر، بواسیر کی اقسام پر، بواسیر کی علامات پر، بواسیر کے عوامل وجوہات پر، اور آخر پہ ہم اس کا حل بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ہمارے شو کے ساتھ جڑے رہیے، اسے سکپ مت کیجئے گا۔ بڑا انفارمیٹیو شو ہے، بڑا نالج والا شو ہے، لازمی شو کو دیکھیے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا۔ بیسیکلی بواسیر نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ پوری دنیا اوورال میں 70 سے 80% لوگ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہیں، اور بیچارے جو ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ اب آغاز بواسیر کیسے پتا چلتا ہے کہ مریض جو ہے وہ بواسیر کا شکار ہو چکا ہے؟ بواسیر میں سب سے پہلے مقد کے اندر یعنی پخانے والی جگہ کے پاس مقد کے اندر سب سے پہلے جلن، سوزش، خارش اور تناؤ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر گندا، غلیظ، سوداوی، بادی خون ہوتا ہے جو مقد کی باریک وینوں کے اندر جا کر جمع ہو جاتا ہے اور مقد کی دیواروں کو پھلا کر مسوں کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ کیونکہ مقد کے ساتھ جو ہے وہ بڑی آنت کا بڑا ربط ہے، بڑا تعلق ہے، تو جب مقد کی جو وینے ہوتی ہیں وہ پھول کر مسوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو بڑی آنت کے اندر بھی سوزش، انفیکشن ہو جاتا ہے، اور بڑی آنت پھول جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مقد کا منہ پھول کر مسوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بادی بواسیر کہلاتی ہے۔ اور براز یعنی جب پخانہ آتا ہے تو جب مقد کی جو دیواریں ہوتی ہیں جب مسے پھول جاتے ہیں، جب براز یعنی پخانہ ان دیواروں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مقد کے اندر جو مسے پھولے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ بلیڈنگ شروع ہوتی ہے وہ خونی بواسیر کہلاتی ہے۔ تو بواسیر کی بیسیکلی 2 اقسام ہے، لیکن حکمت میں ہم اس کی 12 اقسام پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن آج جو ہے میرے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں، تو ہم خونی اور بادی دونوں بواسیر پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو خونی بواسیر اور ایک بادی بواسیر۔ خونی بواسیر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب مریض پخانہ کرتا ہے مقد کے ذریعے تو جب مسے پھولتے ہیں، تو مسے جب پھول جاتے ہیں تو پخانہ جب مسوں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس میں سے بلیڈنگ آتی ہے، یہ خونی بواسیر کہلاتی ہے۔ اور دوسری بادی بواسیر، جب مقد کے مسے پھول جاتے ہیں، پخانہ جو ہے وہ ان مسوں سے ٹکراتا ہے تو اس قدر تکلیف اور درد کا مریض سامنا کرتا ہے اور شرمندہ رہتا ہے اور بعض دفعہ تو واش روم جانے سے بھی کتراتا ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اب کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ تو بیسیکلی خونی اور بادی بواسیر کی علامات ایک جیسی ہوتی ہیں، زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یقیناً مریض جو ہے وہ کانسٹیبیوشن یعنی کہ قبض کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ قبض کو ام الامراض کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ تمام امراض کی یہ ماں ہے، جڑ ہے۔ تو مریض کو جو ہے وہ چاہے وہ خونی بواسیر کا مریض ہے یا بادی بواسیر کا مریض ہے، وہ سب سے پہلے قبض کا وکٹم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے مقد والی جگہ میں سوزش، خارش اور جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، مریض بار بار خارش کرتا ہے اور اذیت کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جب پخانہ سختی سے آتا ہے تو جب مقد کی دیواروں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس قدر تکلیف اور تنگی کا مریض سامنا کرتا ہے اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد معدہ خراب ہو جاتا ہے، مریض کو بھوک نہیں لگتی، قوت ہاضمہ جو ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور
स्पेशली मैदे के अंदर गैस, तबखीर और तजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मरीज का जिस्म जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, मरीज के चेहरे का रंग जर्द हो जाता है, मरीज टेंशन का, चिड़चिड़ेपन का, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। इसके अलावा पखाना कम आता है तो आंतड़ियों के अंदर सोजिश की वजह से कुछ पखाना जो है वो बड़ी आंत में ही रह जाता है और फिर इस तरह पेट फूलकर फारे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और मरीज जो है उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मुसलसल सर में दर्द रहती है। ये इसकी इलामात है। और आखिर पर क्या होता है, मरीज को भूख लगती ही नहीं है, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है और मरीज बड़ी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जियत का शिकार हो जाता है। उसके बाद बेसिकली इसके बवासीर के ऐसे कौन से अवामल है, कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से मरीज जो है वो इस खतरनाक भयानक बीमारी का शिकार हो जाता है। तो आज मैं चीदा चीदा अवामल पर डिस्कस करनी चाहूंगा। सबसे पहले तो वो मेरे भाई लोग जो ज़हनी टेंशन का शिकार हैं, इंतशार का शिकार हैं और अपने जो है वो असाब पट्ठों का शिकार हैं, वो जो है वो बवासीर का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद वो लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वो मेरे भाई लोग जो मुसलसल 12 से 14 घंटे बैठकर काम करते हैं, कोई भी अपनी वर्किंग करते हैं, वो भी डेफिनेटली बवासीर का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी बीमारियां जैसे मैदे के अमराज, जिगर के अमराज, दिल के अमराज, अंतड़ियों के अमराज, दिल के अमराज और इसके अलावा जो शदीद कब्ज का, बादी दायमी कब्ज का शिकार है, वो भी इसका अमराज का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जिनके गुर्दों में पथरी होती है, जिनकी पेशाब वाली नाली में जो है वो पथरी और सोजिश होती है, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो मुर्गन गजाओं का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैलर फॉर्म जो फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वो खवातीन जो बेचारी जिनको डेट खुलकर नहीं आती, वो भी बवासीर का शिकार हो जाती, इंतशार का शिकार है और अपने जो है वो असाब पट्ठों का शिकार है, वो जो है वो बवासीर का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद वो लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वो मेरे भाई लोग जो मुसलसल 12 से 14 घंटे बैठकर काम करते हैं, कोई भी अपनी वर्किंग करते हैं, वो भी डेफिनेटली बवासीर का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी बीमारियां जैसे मैदे के अमराज, जिगर के अमराज, दिल के अमराज, अंतड़ियों के अमराज, दिल के अमराज और इसके अलावा जो शदीद कब्ज का, बादी दायमी कब्ज का शिकार है, वो भी इसका अमराज का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जिनके गुर्दों में पथरी होती है, जिनकी पेशाब वाली नाली में जो है वो पथरी और सोजिश होती है, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो मुर्गन गजाओं का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैलर फॉर्म जो फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वो खवातीन जो बेचारी जिनको डेट खुलकर नहीं आती, वो भी बवासीर का शिकार हो सकती हैं। हामला खवातीन भी बवासीर का शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा वो मेरे भाई लोग जो बार बार पखाना करते हैं, जोर लगाते हैं लेकिन पखाना खुलकर नहीं आता, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी बूस्ट वगैरह करते हैं, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स मेडिसिन का, तेज मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो मसूर की दाल, चनों की दाल, बड़ा गोश्त का मतवातर इस्तेमाल करते हैं, तेज मिर्च मसाला से परहेज नहीं करते, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वो मेरे भाई लोग जो बहुत ज्यादा बिरयानी का, चावलों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा वो मेरे भाई लोग जो पानी पीते ही नहीं, पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, वो भी डेफिनेटली बवासीर का जो है वो शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा जो बहुत ज्यादा सिगरेट नोशी, पान का इस्तेमाल करते हैं, नस्वार का इस्तेमाल करते हैं और स्टीरॉइड चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बवासीर का शिकार हो सकते हैं। तो ये सारी जो है वो वजूहात है कि लोग जो है वो बवासीर का शिकार हो जाते हैं। अब मैं आखिर पर आपको बवासीर से बचाव के लिए क्या हमें एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए, जिन पर अमल करके हम बवासीर के मूजी मर्ज से जो है वो बच सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें, मौसम कोई भी हो, गर्मी का है, सर्दी का है, सबसे पहले आप अपनी रूटीन में रोज 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिया करें। उसके बाद कोशिश करें निहार मुंह आप सिगरेट नोशी, पान वगैरह या चाय वगैरह पीने से जो है वो बचा करें, इज्तनाब किया करें। इसके बाद कोशिश करें जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिसमें खुदा ना खास्ता शराब आ जाती है, या कोको कोला है, या 7 अप है, या स्प्राइट्स बोतलें हैं, कोशिश करें इनसे इज्तनाब करें, अपने दस्तरखान से इन चीजों को दूर फेंकिए। इसके अलावा कोशिश करें जब आप खाना खाइए तो खाना खाने के बाद फौरन सोया मत कीजिए, सोना तर्क कीजिए, कुछ वॉक करके फिर वॉक करने के बाद, चहलकदमी के बाद फिर सोने की आदत डालिए, कोशिश कीजिए। आखिर पर मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि कोशिश कीजिए
जो मिर्च मसाले वाली बादी चीजें उनसे परहेज करें, अपने खानों में दालों का और स्पेशल सब्जियों का इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें और सलाद का, फ्रूट्स का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप गोश्त पसंद है, गोश्त खाना बहुत पसंद करते हैं, तो खाली गोश्त मत खाइए, गोश्त के अंदर दालें या सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, इस तरह खाइए। अगर आप बिरयानी का, चावलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, शौकीन है, इन चीजों से परहेज कीजिए। अगर आप नहीं बाज आ सकते तो कम से कम महीने में 1-2 बार इन चीजों का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। आखिर पर मैं अपनी आवाम को, देखने वाले, सुनने वाले अपने चैनल पर अपने कायरीन को ये कहना चाहूंगा कि अब खुशखबरी, अब आपको खुदा ना खास्ता वो मेरे भाई लोग जो खुदा ना खास्ता बवासीर में जो है वो मस्सों को कटवा कर ऑपरेट करवा चुके हैं, स्टिचिंग करवा चुके हैं और अभी भी नाउमीद है और बवासीर का शिकार है, तो परेशान मत हो, डिप्रेशन शिकार ना लें। लाजमी एक दफा अल हसन दुआ खाना नज़द मंडी क्वार्टर मोड़ मुंदी रोड पर लाजमी तशरीफ लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी हर्बल फार्मुलेटेड मेडिसिन तैयार की हैं जो हर मोज़र असरात से पाक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जड़ी बूटियों से तैयार की गई हैं। सबसे पहले खुशखबरी वो लोग जिन्होंने ऑपरेशन करवाए हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ तरह की स्टीरॉइड्स मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कुदरती जो है वो नुस्खाजात से, जड़ी बूटियों से मुरत्तब करदा अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसी मरहम तैयार की है कि जो मकद में जहां लगाएंगे तो जिसका ऑपरेशन भी हुआ हो, जिसके मौके बने हो, मसे बने हो, ब्लीडिंग होती हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो मलम लगातार सुबह शाम अपनी मकद वाली जगह में लगाए तो अल्लाह के हुक्म से सोजिश भी खत्म हो जाएगी और इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो भी खत्म हो जाएगी, बादीपन, मस्से, ये सब चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल हसन दुआ खाना की जड़ी बूटियां से मुरत्तब करती मेडिसिन बवासीर से रिलेटेड 21 यौम का जो कोर्स है, अल हसन का अक्सीरे बवासीर कोर्स, जिसके अंदर हम कैप्सूल्स देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, गोलियां देते हैं, सफूफ मजून, अल्लाह के हुक्म से ये चीजों के इस्तेमाल से प्रॉपर से, चाहे बवासीर का मर्ज 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है या 1 साल भी पुराना है, अल्लाह के हुक्म से इस मूजी मर्ज से आप छुटकारा पालेंगे। अब मजीद नोट, आप मेरा एड्रेस समात फरमाइए, अल हसन दुआ खाना, रजिस्टर्ड नज़द मंडी क्वार्टर मोड़ मुंदरी रोड फैसलाबाद। अल हसन दुआ खाना रजिस्टर्ड नज़द मंडी क्वार्टर मोड़ मुंदरी रोड फैसलाबाद। मेरा फोन नंबर समात फरमाइए 0300661625, 0300661625 और नीचे जो है वो आप देखिएगा साइट्स पे हमारी जो है वो पट्टियां भी चल रही हैं। हम पाकिस्तान भर में फैसलाबाद के अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं, और इसके अलावा वो मेरे बहन भाई कोशिश करें अव्वल तो अपनी तशखीस करके डायग्नोसिशन करवाकर अल हसन दुआ खाना पर आकर अपना कोर्स लें और बवासीर जैसे मूजी मर्ज से छुटकारा पाएं। अगर आप नहीं आ सकते, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में आप रिहाइश पजीर हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं, हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कीजिए जो हर दफा जो है वो तकरीबन व्हाट्सएप इसी नंबर पर है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि नंबर कौन सा है, नंबर हमारा एक ही है, हमारी जो है हेल्पलाइन एक ही है, 24 घंटे आप सबके लिए अवेलेबल है, तो उस पर कॉल कीजिए और अपना पार्सल जो है वो बवासीर का 21 यौम का अल हसन का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। मैं फिर रिपीट करता चलूंगा, जिसके अंदर मरहम है, गोलियां हैं, कैप्सूल है, सफूफ है, मजून है, 21 यौम के मुसलसल इस्तेमाल से अल्लाह के हुक्म से जितना चाहे पुराना मूजी मर्ज है, अल्लाह के हुक्म से आप बवासीर के मर्ज से छुटकारा पालेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी मतवाजन गज़ा का ख्याल रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान का लाजमी ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।